Today we are going to start the geography portion. The very first chapter of the NCERT you are watching here. This is the Earth in the solar system. So students, this is the topic of the day, the Earth in the solar system. So we are going to study about the Earth and how it is going to be rotate in the solar system. We will see here. So in the beginning we will deal with the planets. See here the different planets are shown, and these are the different planets which are moving around the sun, and they are moving in a particular orbit. So student, let's start the chapter from the NCERT. Actually it's very important to read the chapter. So students, if we look at the sky at night, it seems to be filled with the tiny shining objects. Some are bright, some are very dim, and there seems to be twinkling. So these objects are called the stars. So we are going to read about the different thing. Now see the second paragraph. Along with these bright objects, you may see the moon also. Actually, we are having the different shapes of the moon during the month. So once in a month we see full moon. Then later we see it half. Then we are having the full moon, new moon. Then at one place there is the Amavasya. So these are the different phases. See the second paragraph. We are having different phases of the moon. When the moon is full moon night, it is Purnima. Note down the very important 1 mark question. If we are having full moon night, it is known as Purnima. When the moon is full, Pura, Purnima. Then it is a new moon night, that is Amavasya. When there is darkness, there is no moon, that is Amavasya. So students, we are having different phases of the moon. Let's see the next page of the book. We are having different celestial body in the sky. See the next paragraph. Mark this. The sun, the moon, and all the objects which are shining. So these are known as celestial body. So question will be there. What do you mean by celestial body? Means the objects in the galaxy which are shining. Suppose sun, moon, or the other stars which seems to be twinkle or shine. So all these are known as celestial body. So let's talk about the celestial body. Some celestial body are very big and hot because they are made up of gases. Different gases are there. They have their own heat and light. This is very important line. You must learn the features of the celestial body. First feature, they are big and hot. Second feature, they are made of gases. And third feature, they have their own heat and light. Okay, so these celestial bodies are called star. So we can have the question also, what do you mean by star? So up till here I am going to repeat this paragraph or this page in Hindi also. आज का टॉपिक है हमारा अर्थ इन द सोलर सिस्टम. तो पूरे सोलर सिस्टम में हम देखेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं. यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स दे आर रोटेटिंग, दे आर मूविंग अराउंड द सन एंड दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. जो इनका पाथ है दैट इज ऑर्बिट. सो हमारी अर्थ की जो लोकेशन है, अर्थ हमारी कैसे मूव कर रही है और हमारी अर्थ से ये सेलेस्टियल बॉडीज, ये प्लैनेट्स, ये जितने भी हम देख रहे हैं मून, स्टार और सन, ये हमें कैसे नजर आते हैं. वी विल टॉक अबाउट दिस. तो पहले हमने पढ़ा कि हमारे जितने भी हम देखते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, कभी डिम भी हो जाती हैं. तो इन सब का अपना अपना क्या है, लाइट है. सेकेंड पैराग्राफ में हमने ये देखा कि हमारे पास मून है, इनके डिफरेंट शेप्स हैं. हर मंथ में, हर टाइम पीरियड में हमारे डिफरेंट शेप्स आते हैं. जब हमारे पास पूरा मून, फुल मून है तो उसको पूर्णिमा बोलते हैं, फुल मून. और जिस दिन हमारे पास न्यू मून आता है, जब हमारे पास अभी मून
15 दिन के बाद नहीं नजर आता, उसके बाद नया मून नजर आएगा, दैट इज नोन एज अमावस्या। सो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन फुल मून के और डिफरेंट शेप्स के। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि हमारा ये पैराग्राफ देखो कि जितने भी हमारे ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये शाइन कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे स्काई में हम देखते हैं, जो मून है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन कर रहे हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। तो ये सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं? कोई बिग है तो हॉट भी है, ये इनका अपना जो है हीट है, अपनी लाइट है, और ये बहुत सारी गैसेस से मिलके बनते हैं। ओके, तो इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? स्टार। सो जो सन है वो भी क्या है? एक स्टार। अप टिल हियर यू मस्ट फॉलो द चैप्टर। तो आई हैव एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको नहीं भी समझ आता स्टूडेंट्स तो रिपीटेडली वीडियो को बार बार देखो तो आपको पक्का डेफिनेटली समझ आएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो सेलेस्टियल बॉडी यू मस्ट हैव फॉलो। सेलेस्टियल बॉडी जितनी भी हैं वो क्या है? हमारी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? कंबाइंडली स्टार बोलते हैं। एंड सन इज ऑल्सो अ स्टार। If the question is there in the exam, see, sun is a star. See the cursor, sun is dash, sun is a star. Okay, तो in the sky we are having countless stars. बहुत सारे stars हैं हमारे पास जो रात को हमें shine करते नजर आ रहे हैं। So till here the first page is over. Let's go to the next page of NCERT book. तो देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से स्टार्स है हमारे पास। आपने पहले देखे होंगे स्टार्स। सी द पिक्चर हियर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्क्राइब हियर स्टूडेंट, यू कैन ड्रॉ दिस पिक्चर। यू कैन ड्रॉ दिस पिक्चर ईदर ऑन योर नोटबुक और यू कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑन द A4 sheet as the activity. This is very important for you and it is very interesting also. So let's talk about the next topic. Now what is constellation? See here what is constellation here. While we watch the stars at night, we must have seen a pattern. Sometime we see the stars which are displayed in a particular pattern. This pattern is known as constellation, that is a group of stars. Here you can see different constellations are there. इसमें क्या है? सबसे पहले जो स्टार्स का एक ग्रुप है जो एक प्रॉपर पैटर्न में नजर आता है उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस। तो इसमें उर्सा, सी द वर्ड उर्सा, इसका मीनिंग होता है बिग स्टार, बिग बियर। उर्सा, मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। तो आपके पास एग्जाम्पल है। कॉन्स्टलेशन पहले बताएंगे ग्रुप ऑफ स्टार्स को, और जो उर्सा है ये नेम है, बिग बियर ये हमारी कॉन्स्टलेशन की एक टाइप है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सप्तऋषि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्तऋषि? सी हियर इन दिस पैराग्राफ, सप्तऋषि मीन्स, सप्त मीन्स 7, ऋषिज होते हैं सेजेस, साधु महात्मा जिनको हम बोलते हैं। आसमान में जो 7 स्टार्स हैं वो इस फॉर्म में बने हुए हैं। We used to call that as Saptrishis. See here in the picture, you can see the picture is shown. So we are having Saptrishis. This is also a form of Ursa major constellation. Then let's talk about the pole star. See the next paragraph, pole star. Actually the pole star in the old times people used to fix the direction according to the pole star. Means जिस डायरेक्शन में वो पोल स्टार को देखते थे उनको लगता था कि इस पोल स्टार से हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की हेल्प मिल जाएगी। एक्चुअली जिस साइड में पोल स्टार होता है दैट इज कंसिडर्ड एज द नॉर्थ डायरेक्शन। सो पोल स्टार इज हेल्पफुल टू इंडिकेट द डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। हिंदी में दोबारा बता रही हूँ। कॉन्स्टलेशन की पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताइए कि जब ग्रुप ऑफ स्टार्स है, इकट्ठे तारों का समूह ग्रुप हो जाता है तो उनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। इसमें उर्सा जो है सबसे हमारा बिग बियर स्टार कॉन्स्टलेशन है, एक टाइप है,
उसके बाद सप्तऋषि भी हम इनको बोलते हैं, वहां पे 7 जो स्टार है एक साथ नजर आते हैं एंड वी यूज टू कॉल इट सप्तऋषि। तो ये हमारी एक कॉन्स्टलेशन की नेम है, एक टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोल स्टार। पोल स्टार मीन्स क्या है, पुराने टाइम में जो लोग थे डायरेक्शंस देखने के लिए पोल स्टार की हेल्प लेते थे, बिकॉज जिस साइड में पोल स्टार है उसी डायरेक्शन को मानते हैं कि ये कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है। सो पोल स्टार हेल्प्स टू इंडिकेट द डायरेक्शंस। तो होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो। सो लेट्स टॉक द नेक्स्ट टॉपिक हियर। You must go through the book, students. Try to understand, try to read the book. You must follow the concepts. Then, see the next paragraph. Some celestial bodies. See here, some celestial bodies don't have their own heat and light. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इनके फीचर हैं, सेलेस्टियल बॉडी की अपनी हीट और लाइट होती है, बट कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी हैं जिनकी अपनी कोई हीट कोई लाइट नहीं होती, वो दूसरे स्टार्स की लाइट से जलते हैं, तो इनको बोलते हैं प्लैनेट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्लैनेट्स क्या है, हमारे ग्रह जिसको बोलते हैं। तो प्लैनेट्स क्या हैं, जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं है, वो दूसरी हीट और लाइट से जलते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, स्टार्स की हीट और लाइट से जलते हैं, तो इनको बोलते हैं प्लैनेट्स। तो देखते हैं प्लैनेट्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो प्लैनेट्स का जो मीनिंग है, एक्चुअली ये वर्ड हमने ग्रीक से लिया था। ग्रीक में प्लैनेटाई बोलते हैं। प्लैनेटाई मीन्स वैंडरर, जो इधर उधर बिना मकसद के घूमता है, वैंडरर। तो प्लैनेट का प्लैनेटाई ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है वैंडरर। आपने ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। डिस्क्राइब द लिटरल मीनिंग ऑफ प्लैनेट। एक्चुअली द प्लैनेट वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटी विच मीन्स वैंडरर, जिसका मतलब है इधर उधर घूमने वाला, जो बिना मकसद के घूमते, दैट इज वैंडरर। तो जो हमारी अर्थ है जिसपे हम रह रहे हैं, ये भी क्या है, एक प्लैनेट है। तो हमारी अर्थ कहाँ घूम रही है, दिस मूव्स अराउंड द सन। अर्थ सन के आसपास घूम रही है, तो एक प्लैनेट है। तो जो मून है, मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, ये अर्थ के आसपास घूमता है। सो नोट डाउन द थिंग, जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं। अर्थ भी एक प्लैनेट है, अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। देन हमारे पास जो आप देख रहे हो मून, मून क्या है, एक ये नेचुरल सैटेलाइट है हमारी। तो ये नेचुरल सैटेलाइट मून अर्थ के आसपास मूव करती है, इट मूव्स अराउंड द अर्थ। तो अर्थ इसका मदर प्लैनेट भी है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, the solar system, the very important solar system. You also have to draw the solar system. Now let's move to the next page. solar system actually क्या है, solar system में sun और 8 planets हैं, इसके अलावा सैटेलाइट्स हैं, कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो जिनकी लाइट है, सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो एलिमिनेट हो रही हैं। तो उन सबको मिला के, जैसे एस्ट्रियोड हैं, छोटे छोटे कंकर पत्थर रॉक्स जैसे होते हैं, एस्ट्रियोड मेट्रियोड्स, ये हमारी गैलेक्सी में घूम रहे हैं। तो इन सबको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सोलर फैमिली। सो स्टूडेंट दोबारा से सुन लो, सोलर सिस्टम में, सोलर फैमिली में कौन कौन है, सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि एस्ट्रियोड मेट्रियोड्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलर फैमिली। नाउ सी द डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट or A4 sheet. Students, these activities are very interesting as well as it will motivate to learn the things, to understand the things properly. So draw these. Let's see the diagram. ये डायग्राम हम देख रहे हैं, ये पूरा डायग्राम आप नजर आएगा आपको। See the diagram in the book. Actually this is not visible in the picture. Actually we are having different planets here. You can see the Saturn, then Uranus, Jupiter, Neptune.
different planets are shown here. So students, next page will describe about these planets. ओके इसको हम सोलर सिस्टम में सन को मेजर देखेंगे. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. द सन इज shown in the middle of the solar system. Now see on the next topic, the next page, we are going to discuss about the sun. See the topic sun. Okay, the sun is the center of the solar system. It's the central star because sun is also a biggest star. It is huge and it is made up of extremely hot gases. जो हमारा सन है सोलर सिस्टम के बिल्कुल मिडल में है, सबसे बड़ा स्टार है ये और इसमें बहुत ज्यादा तेज हॉट गैसेस हैं. And it provides pulling force that binds the solar system. It's very very important. जो सन है उसमें एक पुलिंग फोर्स है, ग्रेविटी है. इस ग्रेविटी की वजह से सारे जितने भी प्लैनेट्स है इसके अराउंड इसमें एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं. So next we will see the planet. कौन कौन से planets हैं हमारे पास? Let's move back. Pages are skipped here. So move back to the page. We will see the next planet is, we will discuss about the Earth. Earth is a planet. This is the planet we are living here. So this is very easy to learn the different name of planets. We are having different planets. So student, there is a trick which helps you to learn the different name of the planet. कौन कौन से planets है हमारे पास? जैसे वीनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये आप सारे देख रहे हो यहाँ पे. इन सबको लर्न करने के लिए एक बहुत इजी इंटरेस्टिंग सा आपके पास एक सेंटेंस है that is given here in the NCERT. See, my very efficient mother just served us nuts. See the things. My, M stands for Mercury. Very, V stands for Venus. Then E, Earth stands for efficient. Then here mother, M stands for Mars. So we are having the first letter of each word, it indicates to a planet. My very efficient mother just served us nuts. So within this sentence we can have the name of all the planets. Now see the description. All the 8 planets of the solar system, they move around the sun in a fixed path. ये सारे सन के आसपास एक फिक्स पाथ पे घूमते हैं. इस पाथ को, इस रास्ते को बोलते हैं ऑर्बिट. What is orbit? It is a fixed path on which all the planets move around the sun. So सबसे नजदीक कौन से? मर्करी इज द नियरेस्ट टू द सन. ये आपका ब्लैंक्स का और ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है. नेम द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन. द वेरी नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इज मर्करी. सी हियर फ्रॉम द बुक, यू हैव टू मार्क इट. Student, read it very carefully, listen the video again and again as it will help you to solve the assignment. Okay, now we'll see Mercury is the nearest one. Okay, then it takes near about 88 days to complete one round along the orbit. इसको पूरा करने के लिए एक राउंड सन के आसपास लगाने के लिए इसको कितने डेज चाहिए? 88 डेज. नेक्स्ट है हमारा वीनस. वीनस को हम बोलते हैं अर्थ्स ट्विन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर यू. इट मे बी 1 मार्क क्वेश्चन और अ ब्लैंक. तो वीनस क्या है? हमारा अर्थ्स ट्विन. ये अर्थ जैसे ही नजर आ रहा है क्योंकि इसका साइज और इसका शेप बिल्कुल बहुत ज्यादा सिमिलर है अर्थ से. सो यू कैन रीड इट इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स. वीनस इज कंसिडर्ड एज अ अर्थ्स ट्विन. व्हाई इट इज कंसिडर्ड? Because its size and shape are very much similar to the Earth. That's why it is known as Earth's twin. So now I will describe our latest information. Pluto. Actually, Pluto was also considered a planet. Earlier we are having 9 planets. Pluto was also considered as a planet. But after the meeting of the International Astronomical Union, there was a decision that Pluto is not a planet, it's a dwarf planet.
So it is a dwarf planet. Now it is not in the list of the main planets. Nowadays we considered only 8 planets. So let's discuss the very important planet on which we live, that is Earth. Now see here the Earth. Earth is the third nearest planet to the Sun. Okay, once more revise the pace, whatever we have done, जो हमने अभी तक पढ़ा है. सब सन के नज़दीक, सबसे नज़दीक है हमारा मरकरी, उसके बाद है वीनस आ रहा है, देन उसके बाद आ रहा है अर्थ. अर्थ किस पे नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है. इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स शेप एंड साइज. इन साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. अगर पूरे प्लैनेट्स देखें उनमें से फिफ्थ नंबर पे साइज किसका है? हमारी अर्थ का है. अब अर्थ की शेप कैसी है? साइज आपको समझ आ गया, पूरे प्लैनेट्स में ये फिफ्थ नंबर पे है. अब इसकी शेप कैसी है? बिल्कुल राउंड शेप नहीं है. अर्थ इज नॉट अ टोटली राउंड प्लैनेट. एक्चुअली स्टूडेंट्स इट्स स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. जो इसके पोल्स हैं, जैसे बॉल के ऊपर वाले दो हिस्से हैं, पोल्स हैं, वो वहां से थोड़ा क्या है? फ्लैटन है, सीधा है. एज यू हैव सीन द ऑरेंजेस, जो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है और मिड में से थोड़ा ये बल की शेप है, उभरा हुआ है बाहर से. और इसकी शेप को हम जियोड बोलते हैं. जियोड होती है अर्थ लाइक शेप. तो जियोड शेप है इसकी, हमारी अर्थ की. टोटली ये राउंड नहीं है. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. यस, come to the next page. I am describing it Hindi as well as in English. Again I am saying, अगर आपको नहीं समझ आएगा दोबारा से वीडियो देखो, 2 बार देखो, रिपीटेडली देखो. आई एम श्योर डेफिनेटली ये आपको समझ आ जाएगा. एंड स्टूडेंट्स आपने इसको एफर्ट्स करनी है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट द मून. मून क्या है हमारा? तो एक बार मोर टॉपिक है, इसको भी ऐड कर लेते हैं. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? बिकॉज जो हमारी अर्थ है, इट इज हैविंग द वाटर. its surface is covered with water. How much surface is covered with water? That is 2/3 surface that is covered with water. That's why Earth is called as a blue planet. Okay, Earth को हम बोलते हैं blue planet, नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 2/3 पोर्शन पे क्या है हमारा? इसके ऊपर वाटर है. 71% हमारा वाटर है, 29% अर्थ सरफेस है. तो लेट्स स्टार्ट द मून. मून की शेप आप देख रहे हो. मून को हमने पहले भी डिस्कस किया, इसका थोड़ा इंट्रो पार्ट. मून क्या है? हमारा एक सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास घूमता है. तो मून को हम देखेंगे कि सेलेस्टियल बॉडी है. ये हमारी अर्थ से कितना दूर है? सी द फिगर. यहाँ पे 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ. सो ये डिस्टेंस है, इसको हमने अच्छे से देखना है. तो हमारा जो मून है अर्थ के आसपास इसके अराउंड मूव कर रहे हैं. तो इसको एक सर्कल पूरा करने के लिए कितने डेज चाहिए? 27 डेज. इससे ज़्यादा डीपली हम नहीं पढ़ेंगे. आपके स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन इज ओके. तो अर्थ के आसपास जो मून है, इसका जो सैटेलाइट है, इसको मूव करने के लिए अर्थ के अराउंड इट टेक्स नियर अबाउट 27 डेज. नाउ we will discuss the next page. Let's move on the next page. Here the new topic is asteroid. What are the asteroid? जैसे कि हमने पढ़ा था कि सोलर फैमिली में प्लैनेट्स हैं. मेजर हमारा पहले सन आएगा, प्लैनेट्स आएंगे सारे 8 प्लैनेट्स में, जिसमें अर्थ भी एक है. तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा सन को भी डिस्कस किया. इसके अलावा हमारी जो गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, सोलर फैमिली है, इसमें और भी चीज़ें हैं. छोटे छोटे एस्ट्रियॉड और मेट्रियॉड्स हैं. एस्ट्रियॉड क्या है स्टूडेंट्स? सी, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमेरस टाइनी ऑब्जेक्ट्स. न्यूमेरस होते हैं बहुत सारी, मैनी छोटी ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटी बॉडीज हैं जो हमारे सन के आसपास घूम रही हैं. वो क्या होती हैं? एस्ट्रियॉड. एस्ट्रियॉड कहाँ पे मिलते हैं? बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड यूपिटर.
जो मार्स और जुपिटर के बीच का ऑर्बिट है, पाथ है, उसमें जो छोटे छोटे धूल, कंकर, मिट्टी, जो भी छोटी बॉडीज मिलती हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड्स। ओके, तो उसके बाद है मेट्रियोट्स। मेट्रियोट्स क्या हैं? ये स्मॉल पीसीज हैं रॉक्स के विच मूव अराउंड द सन, जो भी ये भी सन के आसपास मूव कर रही हैं, इनको बोलते हैं मेट्रियोट्स। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, अभी हमने डिस्कस किया। जो एस्ट्रॉयड्स हैं उनका जो ऑर्बिट है, उनका प्लेस है मार्स और जुपिटर के बीच में है, और जो मेट्रियोट्स हैं ये मूव्स अराउंड द सन, ये उसके आसपास घूमते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, जल भी जाते हैं। तो जब ये हीट और बर्न होते हैं, हीट अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। तो ऐसे लगता है कि जैसे हम देखते हैं कि तारा टूट गया, एक लाइट सी निकलती है, सो वो होते हैं मेट्रियोट्स। Now come to the next topic. After this, we will discuss about the galaxy. And do you see a British board or band? Then the white glowing path across the sky. Sky में बहुत सारे stars के आसपास एक whitish board में बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आती है। तो मिलियन स्टार्स का एक क्लस्टर होता है, बहुत ज़्यादा स्टार्स है, मिलियंस ऑफ स्टार, इनका एक ग्रुप है, क्लस्टर है। तो इन सब को मिला के हमारा बनता है मिल्की वे। जो व्हाइटिश बोर्ड है, एक बैंड पूरा नजर आता है, जब बहुत सारे स्टार इकट्ठे हैं तो उसको बोलते हैं मिल्की वे। तो ये हमारी जितनी भी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ये गैलेक्सी होती है, इसका ही पार्ट है एक। तो गैलेक्सी क्या है एक्चुअली, इसको हम आकाश गंगा बोलते हैं अपने हिंदी सिस्टम में। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जितने भी बहुत मिलियन बिलियन स्टार्स का एक ग्रुप है, क्लस्टर्स है, ठीक है। तो उन सब से क्या बनती है? कि गैलेक्सी बनती है। सी द डेफिनेशन, मार्क द डेफिनेशन। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। सो देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज़्यादा हो सकती हैं। See the picture of Milky Way. Now come to the next page. Hope आपको समझ आ रहा होगा सारा। Now see, ये एक पिक्चर है आपको गिवन है, सेंटर यहाँ पे दिस इज द अर्थ। ओके, यहाँ पे हमें हमारी ये अर्थ है, उसके ऊपर हम अर्थ के ऊपर है। हमारे अर्थ के आसपास क्या है? सारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अराउंड सारा क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी है, बहुत सारे मिलियन बिलियन स्टार्स हैं, और ऐसे हमारी कितनी गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती हैं? पूरा यूनिवर्स बनाती हैं। सो दिस वाज द चैप्टर, इसकी प्रॉपर समरी और एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आपने ये ब्लैंक्स हैं ये पूरी करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारी ब्लैंक्स और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर हैं, वो हम करेंगे। तो दिस वाज द चैप्टर, होप आपको समझ आ गया होगा। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।